नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम एमएसएमईज के लिए अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं ताकि तेजी से बदलते दौर के लिए स्मॉल बिजनेसेस खुद को तैयार कर सकें। आज हमारा फोकस होगा ग्लोबल ट्रेड पर, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के इंडिया के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए और खासकर एमएसएमईज के लिए क्या मायने हैं, हम इसी का जायजा लेंगे। इस स्पेशल सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर अनिल वाधवा, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राहुल अलूवालिया, फाउंडर डायरेक्टर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ ही मौजूद हैं विनोद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं एम्बेसडर वाधवा के साथ। एम्बेसडर वाधवा, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की बतौर प्रेसिडेंट वापसी हो गई है, इसके ग्लोबल ट्रेड के लिए क्या मायने हैं? यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स का एक बड़ा एक्सपोर्ट बाजार है। अगर यूएस टैरिफ्स में बढ़ोतरी करता है इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए और घरेलू प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, तो ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरी इकोनॉमीज भी टैरिफ में इजाफा कर सकती हैं। इन डेवलपमेंट्स का इंडिया यूएस ट्रेड पर कैसा असर दिख सकता है, आपकी राय? So I think Trump may extend the tariffs beyond China to include India and some other countries, and these tariffs will be raised strategically to onshore manufacturing and also to change the current supply chains. So, in the light of this, I think Indian exporters could face higher customs duties as a result of reciprocity of goods on items like automobiles, textiles, and pharmaceuticals. If the new US administration pursues the US first agenda. Also, one important aspect of this is that Trump could also tighten H-1B visa rules, which impacts costs and growth for the Indian IT companies. If you look at the WTO profile of the United States, it is always a high tariff imposer for items like dairy products, fruits and vegetables, cereals and food preparations, and also oil seeds, fats and oils. Also some beverages and tobacco. These are the traditional high tariffs items going into the United States. So since Trump had earlier walked out of the Trans-Pacific Partnership, there's also a chance that he could look at the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity in a similar light, and perhaps the United States will not take part in that arrangement any longer. But that remains to be seen. There's now an increased demand for technology from the United States, energy, capital goods, etc. So that has opened new avenues for our bilateral trade. And India is a key destination now for American businesses like in the professional, scientific, and technical services fields. Also, the US has become the third largest investor into India. Our bilateral trade is about $120 billion for goods and another $70 billion for services. Also, the fact that American companies earn billions of dollars in the Indian market from advertisements, and also Amazon is the number one retailer in India. There are a lot of engagements just other than trade and investments. एम्बेसडर वाधवा, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने एड्रेस में ये कह चुके हैं कि हम वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि उन्हें रोकेंगे। वहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को रशिया में यूएस की तरफ से सप्लाई की गई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को स्ट्राइक करने की हरी झंडी दिखा दी। ऐसे में जब अनसर्टेनिटी किसी भी बिजनेस के लिए सही नहीं है, तो इस व्यू का दौर में हम किस ओर बढ़ रहे हैं? So the Biden administration has, of course, taken the decision to allow the use of American long-range missiles, the ATACMs. And not only that, along with that, you also have the French and the UK missiles, which have also been allowed for firing into Russia. But there are two important aspects here. One, the numbers are very limited. Secondly, Russians have moved out the important targets away from the range of these missiles elsewhere. And to the fact that, the telemetry of these missiles is controlled still by NATO. So obviously, the United States still has a say on how and when these missiles are fired. But Trump is quite clear that he would lean on both sides to solve this issue. And will try and bring about, a peace settlement between the two countries. राहुल जी, तो दौर अनिश्चित है।
लेकिन इसके बावजूद इंडियन एक्सपोर्ट्स का अक्टूबर में अच्छा प्रदर्शन रहा है। निर्यात में 17% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। ये जो 6 सेक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, एग्रीकल्चर और 20 कंट्रीज पर फोकस की जो स्ट्रैटेजी है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? वहां पे वी हैव टू लुक एट व्हाट वी आर स्ट्रांग इन and where can we perform better. So the sectors that you have named are excellent. I think the one minor exception is कि agriculture में we have underperformed to some extent. We have relatively we have overperformed in recent years, especially we have overperformed in engineering goods, we have overperformed in electronics, we have overperformed in pharma traditionally in India. So these are certainly areas where we should try and increase our performance. The other areas where we should look at and be careful कि हमें क्या करना चाहिए, वो है सरकार का perspective. I think the government perspective has to be कि where are we underperforming, not where are we overperforming. क्योंकि जहाँ पे हमारा performance relative to हमारे क्षमता क्या है, हमारे strengths क्या है, वो उससे हमारा performance is lower than expected. Those are the areas where strategically we should try and focus कि यहाँ पे हमने कुछ बाधाएं खड़ी करी हुई हैं, यहाँ पे हमने कुछ problems create किए हुए हैं, which is why our performance is lower. And these are sectors like garments, handicraft, sectors where traditionally SMEs and MSMEs are very strong. So in areas में I think the government has to look at a strategic perspective कि हमारा performance हमारे relative weight in the world से कम क्यों है. विनोद जी, राहुल जी बता रहे हैं कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स पर जोर देने की जरूरत है। वहीं आप ई कॉमर्स की असीम संभावनाओं पर राय दे सकें। इसको बनाने के लिए उद्यमियों को कैसे कदम बढ़ाना होगा? अगर आप देखें तो पूरे विश्व में ई कॉमर्स के जरिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो काफी ज्यादा है। करीबन $800 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है आज की तारीख में। और ये जो 800 बिलियन का एक्सपोर्ट है, इसमें चाइना का ही केवल करीबन $330 बिलियन है। और अगर आप पूछें तो भाई इंडिया कहां पे है, तो इंडिया आज की तारीख में सिर्फ $2 बिलियन साल का कर पा रहा है। बट ये 2 बिलियन कैसे हो रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये $2 बिलियन करीबन 3 लाख व्यापारी मिलकर कर रहे हैं। और इसमें कई प्रकार की बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। देखिए, ट्रेडिशनली हमारी बिलिंग सिस्टम, हमारा बिल को मैच करना, हमारा पेमेंट रिसीट करके उसको रिकंसाइल करना, ये सब B2B बिजनेस के लिए बना हुआ है, जहां पे एक बिल 2-2 लाख, 3-3 लाख डॉलर का होता है। अब जब आप एक बिल बनाते हैं सिर्फ $40 का, और उस पे आपको बिल रिकंसाइल करने के लिए या बाकी सब खर्चे 2,000 या 3,000 रुपए होता है, या उस पर पेनल्टी लगती है कि भाई बिल रिकंसाइल नहीं हुआ उसके लिए, तो बहुत सारे लोग ये छोड़ ही देते हैं कि भाई पोटेंशियल तो दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी तो है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, चाहे फिर वो फर्नीचर हो, टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, आयुष हो, इन सब सेक्टर्स के लिए हमने ये अनुमान लगाया है कि करीबन $200 बिलियन का पोटेंशियल है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें आज सिर्फ इंडिया $2 बिलियन कर रहा है। करीबन 6 लाख एक्सपोर्टर जिनके आईईसी कोड्स अभी एक्टिव हैं, वो सब के सब मेन मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ पाएंगे, B2C एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और हमारा अनुमान यह है कि उसमें से करीबन 2 लाख एक्सपोर्टर ऐसे निकलेंगे जो एवरेज 6 से 10 करोड़ रुपया साल का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो विनोद जी, आपके अनुसार ई कॉमर्स में मौके बनाने के लिए जरूरत है बिलिंग रिकंसिलिएशन को MSMEs के लिए सरल बनाने की। ऐसा देखा जाता है कि उद्यमियों को एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज या फिर नई संभावनाओं पर सपोर्ट की उम्मीद रहती है। आपने अपने कैंप्स में इस मोर्चे पर क्या पाया है? वहीं जहां तक ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की भूमिका की बात है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? DGFT ने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसमें हर
देश में कितना इंपोर्ट हो रहा है, कौन से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए क्या खर्चा लगता है या दुकान खोलने के लिए उन पे क्या खर्चा लगता है, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज क्या होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एफटीएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किन किन देशों से हमारे हैं और कहां हमें ये मूवमेंट मिलती है कि भाई हमको थोड़ी प्रेफरेंस मिल रही है, इससे लेकर ऑन डिमांड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, एक्सपोर्ट प्रोसेस, हर कोई चीज है ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पे। एम्बेसडर वाधवा, विनोद जी ने ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जिसमें एफटीएस की जानकारी भी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप एफटीएस पर इंडिया की मौजूदा स्ट्रैटेजी को कैसे रीड करते हैं, इसे कैसे अवसर क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि पहले एफटीएस को लेकर इंडस्ट्री के कंसर्न्स भी रहे हैं। तो इंडिया का एक्सपीरियंस विद एफटीएस काफी मिक्स रहा है। और एक तो पहले जनरेशन के जो एफटीएस थे, जो जापान, आसियान और साउथ कोरिया के साथ साइन हुए थे, उनका रिजल्ट भारत का ट्रेड डेफिसिट ही हुआ है। उसके कई कारण हैं। एक तो यूटिलाइजेशन रेट जो है भारत का 25% के करीब है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन रेट करीब 75%, 80% तक गया है। और ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में प्रोसीजर्स काफ़ी कम्बरसम है एक्सपोर्टर्स के लिए, और इंडस्ट्री की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी नहीं है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन हमारे लिए बहुत मेजर कंसर्न का बिंदु रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने गुड्स एफटीए पार्टनर्स, आसियान के पार्टनर्स के थ्रू रूट करता रहा है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स में काफ़ी गुड्स की फ्लडिंग हुई है। एक्सपीरियंस हमारा ये रहा है कि फर्स्ट जनरेशन एफटीए का जो रहा है वो ये है कि ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर पड़ा है, और ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर और डेयरी, उनके ऊपर खास करके पड़ा है। आरसेप की बारी आई 2019 में, तो भारत ने उसमें पार्टिसिपेट करके उसको छोड़ दिया, क्योंकि चाइना एक मेन रीजन था। और उसके बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि वर्ल्ड आगे चला गया है और बायलैटरल रीजनल अरेंजमेंट जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरह से इसके चलते हमने एफटीए एंगेजमेंट को फिर से देखा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्टा साइन हुआ, फिर एक सेपा एग्रीमेंट यूएई के साथ साइन हुआ, और फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो एफ्टा कंट्रीज के हैं वो भी हुई। हमने देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन में जो इनिशियल ईयर्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएई, ये दोनों जो एग्रीमेंट्स हैं इनके साथ ट्रेड काफी बढ़ा है। तो ये पोस्ट पैंडेमिक के जो एफटीएस हैं वो इंडिया को हेल्प कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स में और रेजिलियंस में। अब अक्टूबर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी को ओवरऑल किया है, तो किस तरह से एफटीएस को उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और उसमें से इन्वेस्टमेंट गेन मिल सके, तो उनके लिए एक गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है। उससे क्या होगा कि जो आगे चलकर जो लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, और ईयू का जो एफटीए होगा उसमें जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इशू आएगा, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसकी एक स्ट्रैटेजी हमारे पास पहले से तैयार है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात होगी ग्लोबल ट्रेड में अवसरों को टैप करने के लिए एमएसएमईज कैसे बढ़ें और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स पर नजरिया। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। ग्लोबल ट्रेड पर आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, तो बदलते दौर में एक तरफ चुनौतियां हैं तो दूसरी ओर हैं अवसर। एमएसएमईज के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरा एडवाइस होगा टू एसएमईज एंड एमएसएमईज कि आप मार्केट सॉल्यूशंस जो आ रहे हैं उन पे भी पूरा जोर दीजिए, कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे एग्रीगेटर्स इकट्ठा हो रहे हैं टू सॉर्ट ऑफ अलाउ एसएमईज कि आप कैसे पूरा फायदा उठा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल जो सरकार रिसोर्सेज ऑफर कर रही है, जो विनोद जी जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एसएमई फोरम वगैरह के थ्रू, दे शुड कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट। बट एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके जो सर्विसेज हैं उनको भी पूरी तरह से उनको एक्सप्लोर करना चाहिए।
कुछ नए स्टार्टअप्स हैं जो कि सर्विसेज ऑफर करते हैं कि आपका ये जो रिकंसिलिएशन वाला प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व कर देंगे एटसेट्रा. सो एसएमईज और एमएसएमईज को दे शुड रीच आउट, फाइंड रिसोर्सेज लाइक दिस एंड बी ओपन टू यूजिंग देम. यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि जो झिझक गया, डर गया, वो गवा देगा. बट आई थिंक जो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करे, लुक्स आउट फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी, तो बहुत कुछ है वहां पे जीतने के लिए. विनोद जी, इंडिया एसएमई फोरम फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को भी सपोर्ट कर रहा है. आप कुछ इंसाइट्स और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर अपना नजरिया दे सके. हर कोई एंटरप्रेन्योर इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे फिर वो क्वालिटी हो, इनोवेशन हो, चाहे फिर वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हो जिसमें कोई न कोई नयापन हो, कुछ अलग हो, ये सब पॉसिबिलिटीज़ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स नॉर्मली अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं. अगर कमी कहीं है तो वो वहाँ है कि जहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज़ अभी समझ में नहीं आ रही, एंटरप्रेन्योर्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं. इसकी वजह से हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इन 8 वीक्स. मतलब 8 हफ्ते में आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, वो प्रोग्राम हम लोग ने स्टार्ट किया. इस प्रोग्राम में हम लोग हर कोई इंसाइट कि आप प्लेटफॉर्म कैसे चुने, आप प्रोडक्ट को कैसे इनोवेट करें, आप मार्केट प्लेस में कौन से मार्केट में कैसा एक्सेस करें, कैसे आप अपना सीआरएम बनाएं, कैसे आप अपना ब्रांड ट्रेडमार्क ये सब बनाएं, किस प्रकार की पैकेजिंग होनी चाहिए, ये सब. एम्बेसडर वाधवा, बात एमएसएमईज की है तो एक और अहम पहलू पर आपकी राय चाहेंगे. हाउ डू यू सी द रोल ऑफ इंडियन मिशंस अब्रॉड इन सपोर्टिंग एमएसएमईज? तो इसमें जो इंडियन मिशंस हैं उनको खास हिदायत दी गई है काफी सालों से कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं या एमएसएमईज हैं उनको स्पेशल हेल्प दी जाए और टाइमली हेल्प मिले. अब जो मिनिस्ट्री ने जो स्कीम्स बनाई हैं जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है या मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है और जो डिजिटल सोल्यूशन की स्कीमें हैं उसको मिशंस को इम्प्लीमेंट करना होता है. अब कई बार हमने ये देखा है कि कई जगह से कंप्लेंट्स आती हैं कि रिस्पांस जो है उसका टाइमलाइन स्लो है. और मैं जहाँ जिस भी मिशन में रहा हूँ जो कमर्शियल सेक्शन है उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि एमएसएमई से अगर कोई भी ईमेल या कम्युनिकेशन आए तो उसको 24 घंटे में रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यही सेक्टर है, एमएसएमई का सेक्टर है. और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैं. जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं वो मिशन के थ्रू नहीं आते हैं. हमने देखा है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं जो जिनके पास क्षमता इतनी नहीं है वही मिशन को कांटेक्ट करते हैं. तो हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है इसमें, और इसको जितना हो सके स्ट्रेंथन करना होगा. और जितना फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट दे सके मिशन के थ्रू वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ट्रेड फेयर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनकी जानकारी किस तरह एमएसएमईज को पहुंचाई जाए टाइमली मैनर में, और ऑल्सो मार्केट इंटेलिजेंस किस तरह उनको मिल सके, और जो कॉस्ट हैं उनको किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा रीइंबर्स कर सकें, स्पेशली जो एक्सपोर्टिंग एमएसएमईज है. आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. राहुल जी, ग्लोबल ट्रेड के मद्देनजर जहां तक चीन की बात है, देयर हैज बीन डिसएंगेजमेंट अलोंग द बॉर्डर्स. आगे चलते हुए आप इकोनॉमिक ट्रेड फ्रंट पर क्या उम्मीद करते हैं? चाइना इंडिया के टॉप इंपोर्टिंग पार्टनर में शामिल है और इकोनॉमिक सर्वे में भी चाइना से एफडीआई की बात रखी थी. बहुत ज़रूरी है कि हम ये पार्टनरशिप आगे बढ़ा पाएं. अगर आप देखें वियतनाम जैसी कंट्री का एग्जांपल अगर हम लें, ये चाइना का दुश्मन देश रहा है, उन्होंने वॉर लड़ी हुई है, पर वो चाइना से इन्वेस्टमेंट को वेलकम करता है. राइट कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ देखिए, पैसे भी आते हैं, नो हाउ भी आता है. जो आपके देश में फैक्ट्री खड़ी हो रही है, अगर कल कुछ वॉर या कुछ शुरू हो जाए तो वो फैक्ट्री को लेके भाग नहीं सकते एज सच. राइट, सो आई थिंक हमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए दैट
the best strategy from a military perspective is a strong economy. अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेंगे, अगर हमारी ग्रोथ तेज रहेगी, तो हम कल किसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। एम्बेसडर वाधवा, इंडिया चाइना ट्रेड पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, या फिर इस पहलू पर बात करना अभी अर्ली होगा? The COVID time when there was an issue on the border, the government had issued Press Note 3, which covers investments from neighboring countries, also covers China. And in the Chinese case, investments have to be scrutinized on a case-by-case basis, just like any other neighboring country. But going forward, if there is trust which has been restored, then I'm sure slowly, this trust will come back, and we'll see much more of an opening up to the Chinese investments. Of course, what has happened over the past in terms of telecom and the power sector is something that the government will have to take into account, and that is the way the thinking is going in the government at the moment. विनोद जी, लास्ट वर्ड आपसे लेते हैं। ट्रेड्स पर हलचल देखी जा रही है और वो एमएसएमईज के लिए एक बड़े चैलेंज फाइनेंसिंग पर भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग पर आपकी क्या राय होगी? जी सौरभ जी, इनफैक्ट ट्रेड्स जैसे आपने कहा ने बहुत बड़ा डिफरेंस एमएसएमईज की लाइफ्स में किया है। कंपैरेटिव फाइनेंसिंग रेट्स, क्विक एक्सेस टू फंड्स, ये इसके साथ साथ ये कि भाई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, ये तीन चीजें ट्रेड्स से इजीली हो गई हैं। बट इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इसको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को जेम और जीएसटी दोनों से जोड़ने की बहुत बहुत जरूरी मतलब आवश्यकता है। और उसके बाद ये फिर अगला स्टेप होगा जब यहाँ पे ट्रेड्स के जरिए हम लोग एक्सपोर्ट बिलिंग या B2B एक्सपोर्ट बिलिंग कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड के तमाम डेवलपमेंट्स पर 360 डिग्री नजरिया देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि लोकल से ग्लोबल चेन में एमएसएमईज मौकों को बनाने के लिए रणनीति बनाएंगे और कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल एम्बेसडर अनिल वाधवा, राहुल अहलुवालिया और विनोद कुमार, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एसएमई एक्सप्रेस। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। नमस्कार।